الرحيم شمس بدر دجا شمس دہا بدر دجا شمس دہا بدر دجا میرے محمد مصطفیٰ میرے محمد مصطفیٰ. ہیں پیارے دوستو، سب سے پہلے تو آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ ایک ایسا خزانہ اور ایک ایسی کتاب آپ لوگوں کے لیے پیش کی جا رہی ہے جو خزانے سے کم نہیں ہوگی. جو لوگ دوائیں کھاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ تمام چیزیں کرنے سے کتنے نقصانات ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے پیش کی ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کا استعمال کریں تو ہم ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ ہم صرف کیونکہ اس بات کو جو ہے وہ ہمیشہ انڈورس کرتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ڈاکٹر کی وہ کیمیکل کی جو دوائیں ہیں وہ کیسا ہم پر افیکٹ کر دیں اور کتنا ہمیں ویک کر دیں. مزہ تو جب ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں اور ہمیں کوالٹیٹیو لائف مل جائے. آپ سب کو آج کی اس تقریب میں خوش آمدید. میرا تعارف کو زیادہ غالب کمال نے کرا دیا. بس میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آج کی ہمارے پہلے سے یہ بتاؤں کہ 2 مہمان ہمارے امرین حسیب امبر سلپ ہو گئیں تو ان کو کمر میں چوٹ آئی ہے، اس وجہ سے نہیں آ سکتی ہیں. عمرانہ راستے میں وہ آ رہی ہیں. رانی آپا کی کتاب 16 سنگار. رانی آپا سے میری دوستی چیمبر آف کامرس کے حوالے سے تو کافی عرصے سے رہی، لیکن گزشتہ 1 سال سے کچھ زیادہ رانی آپا اور ہم قریب آ گئے. وہ آرٹ کونسل میں پروگرام میں آیا کرتی تھیں اور پھر ایک دن جیسے کہ غالب نے کہا کہ ان کو بھی نسخہ بتایا گیا کہ آپ یہ پی لیں تو آپ کی جو ہے وہ شوگر لیول ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم بھی اس دن کچھ ایسی کسی بیماری کا شکار تھے. انہوں نے کہا بھائی یہ کر لو ٹھیک ہو جاؤ گی. تو واقعی وہ ٹوٹکا اثر کر گیا. اور پھر جب بھی رانی آپا آتی ہیں ہمارے پاس ایک نیا ٹوٹکا، ایک نئی بھی اسکن یہ ہو رہی ہے خراب، یہ کیسے تم بیٹھی ہو اس جگہ پہ، اس کی اسکن کو یوں کر لو تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. تو ہر ہم ان کے مشورے پہ عمل کرتے چلے گئے اور آج ان کے مشورے پہ عمل کر کے آپ کے سامنے بتائیے گا. لوگوں نے کہا پہچان نہیں سکے پرانی شاہدہ اور نئی شاہدہ. اچھا اب دوسری بات یہ، پروگرام ختم ہوتا ہے لوگ اس وقت دیکھتے ہیں پھر بعد میں بھول جاتے ہیں، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ جب یاد آتا ہے کہ بھائی یہ ہو گیا ہے ٹوٹکا کہاں سے، تو پھر ڈھونڈا جاتا ہے. تو چینل پیچھے جا کے اس کو تو وہ نہیں کر سکتے، یوٹیوب کو کھولے یہ کریں یہ وہ کریں، بہت ایک مشقت طلب کام تھا. تو میں نے رانی آپا کی جب چیزیں دیکھی ان سے میں نے کہا کہ آپ اس کو کتابی شکل میں لائیں، کیونکہ یہ اتنا خزانہ ہے اور آپ تو اتنا بڑا کام کر رہی ہیں. جب یہ کتابی شکل میں آئے گی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی تو بہت فیض پہنچائے گی سب کو. پھر رانی آپا نے ہمارے اس مشورے پر عمل بھی کیا اور پھر ہمارا اور رانی آپا کا سفر کتاب کے حوالے سے شروع ہو گیا. پھر رانی آپا ہر تیسرے دن ڈسکشن کے لیے ہمارے پاس آتی تھی اور ہم ان کے پاس جاتے تھے. اچھا اس سفر میں سارا مطلب بہت پیچیدگیاں بھی ہوئی، چیزیں بھی ہوئی، تو وہ سب ہم مل کے سولو کرتے رہے. اور اس سفر میں میرے ساتھ جو لوگ شریک رہے رانی آپا کے علاوہ ان کے بیٹے، ان کی بہو وجیہ اور وسیم عباسی جو اس کتاب کی جنہوں نے کمپوزنگ کی ہے، پوری بنایا ہے، اس کی پروف ریڈنگ ہم لوگ سب مل کے دیکھا کرتے تھے اور وہ نیٹ پہ وہ تصویریں سرچ کر کے اس کتاب کو بنانا سنوارنا نوٹ تلک جو تھی وہ ہم لوگ سب مل کے کیا کرتے تھے. تو میں بہت شکریہ اپنی ٹیم کا ادا کروں گی، وسیم عباسی کا اور نعیم ہمارے فوٹوگرافر، وہ بھی ہمارے ساتھ. بہت مبارک ہوں اس کتاب کی، اور اس کتاب کے ذریعے آپ لوگ یقیناً فیض پہنچے گا آپ لوگوں کو سب کو. اور کتاب رانی آپا کی ضرور خریدیے. آج 40% ڈسکاؤنٹ پہ انہوں نے رکھی ہے، تو میرے خیال میں جب بھی یہاں سے سب جائیں گے تو ایک ایک ہاتھ میں کتاب تو ضرور ہوگی. اور جو مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے، یہی روایت اہل وفا ہے کیا کہیے، یہی روایت اہل وفا ہے کیا کہیے، اگر ستم بھی کرے وہ تو مرحبا کہیے. حسیب صاحب توجہ چاہوں گی. اگر ستم بھی کرے وہ تو مرحبا کہیے، کسی
को आज दिमागे तकल्लुफात नहीं, किसी को आज दिमागे तकल्लुफात नहीं, जनाब अब तो जो कहना है बरमला कहिए, जनाब अब तो जो कहना है बरमला कहिए। कयूदे वक्त से आजाद है फसाना इश्क, कयूदे वक्त से आजाद है फसाना इश्क, ना इब्तिदा इसे कहिए ना इंतहा कहिए, ना इब्तिदा इसे कहिए ना इंतहा कहिए। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो रानी आपा के 16 सिंगार की जो बुक मौजूद है उस पर आपको स्पेशल 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और आप बखूबी जानते हैं कि एक बात मैं आप सबको कहूंगा कि आज ही अपने जिंदगी के दायरेकार को जो है वो इन तमाम टोटकों पर ही चलाना शुरू कर दें। उसकी जिंदा मिसाल मैं हूं और मैं ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करता हूं दवाइयां और ज्यादा से ज्यादा इन तमाम टोटकों पे अमल करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहुत अजीज बहन मेहताब भाई जी साहब, मैं हमेशा से इनका फैन हूँ। और रानिया पता आपको खास तौर से मुबारकबाद, क्योंकि आपने जो शोबे कदम रखा है उस पर मैं कोई बात भी करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 22 कंट्री में अपनी दवाएं एक्सपोर्ट करता हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान की मेडिसिन 22 कंट्रीज में जाती हैं। डॉक्टर इसमें 25-50 साल में हर डॉक्टरों से, हकीमों से, हम सबसे हेल्थ सेक्टर में मेरे सबसे ताल्लुकात है। तो जो बात मैं कहूँगा उस पर आपको किसी और मज़ीद प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। और हम न अक्सर कसम खाइए, जब स्टेट में गए जब भी कसम खाए थे कोई गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर जो होता है वो फिर बात की बात है। मेरे सामने गिरामी, एक बेसिक उसूल याद रखिए कि आप जितने फितरत से नज़दीक होंगे उतने ही आप सुकून में होंगे, उतनी आपको कम बीमारियां होंगी। शायर कादीन जो है, कादिर मजाक हो जाता है, शायर कादीन पे मैंने मैन्युफैक्चरर ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, उसने एक बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ही अल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम से मैंने इंस्टीट्यूट खोला था, अल्टरनेटिव मेडिसिन। वहाँ पर हर तरीका इलाज था माइनस एलोपैथिक। तो लोग मुझसे कहते थे, डॉक्टर्स भी, यार भाई क्या आप यार दवाएं बनाते हो, दवाएं बेचते हो, हम तुम्हारे लिखते हैं, तुमने वो खोला हुआ है। तो मैंने कहा क्यों कि हकीम और डॉक्टर एक कमरे में नहीं बैठ सकते, शर्म की बात। तो रात के 11 बजे तो पैकेज शुरू होते हैं, तो जो सुबह 4 बजे तक चलते हैं। फिर आपका जो चलता है अब फूड पांडा, वो 12 बजे शुरू होता है हाफ प्राइस पे, और वो सुबह तक चलता है। तो लिहाजा, और दूसरी बात एक और है रानी आपा साहबा, वो कहते हैं कि जो गरीब है वो आटा सस्ता लेने के लिए भाग रहा है और अमीर जो है वो तोंद निकली हुई अंदर करने के लिए भाग रहा है। And thank you for being so kind. I won't take much of your time. मैं ये दुरुस्त है कि मैं कहीं किसी जगह नहीं जाता, और उसका रीज़न ये नहीं है कि मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी होता है। मैं थोड़ा सा बहुत पर्सनल किस्म का इंसान हूँ। मैं नॉट नेसेसरीली बहुत ज़्यादा जगह जाना पसंद नहीं करता। रानी आपा खुद मेरे पास आई थी, तो ये हो नहीं सकता था कि मैं यहाँ नहीं आता, ये पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। अभी मुबशर बात कर रहे थे और मुल्क की बात कर रहे थे, उससे पहले हसी भाई बात कर रहे थे, मुल्क की बात कर रहे थे, साथ साथ रानी आपा के टोटके भी हैं। मैंने आज रानी आपा के किसी टोटके के बारे में बात नहीं करनी, बट एक टोटके के बारे में बात करनी है। जस्ट वन टोटका। That's about life. It's about never giving up. One thing that I've seen about Rani Appa is she never gives up. I have seen her cry, I've seen her laugh, I've seen her fight, I've seen her walk the walk,
I've seen her gone through things that a person won't even imagine کہ اس کی زندگی میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. But most importantly, آپا کی فیملی آپا کے لیے سب کچھ ہے. آپا نے اپنی فیملی کو بڑا کیا. آپا نے اپنی فیملی کو بڑا کیا اور بہت اچھی تربیت کی. اتنی پیاری، اتنی محبت بھری آپ لوگوں نے مجھ سے باتیں کی، میرے لیے کی. آپ یقین کریں کہ آج مجھے اپنی زندگی کا حاصل ہو گیا. اور یہ کہنا چاہوں گی کہ بچپن سے لے کر آج تک میرا جو تعلق ہے ایک طب کے گھرانے سے، وہ سارا کچھ میری کتاب میں موجود ہے. لیکن مختصراً سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بات کہوں گی کہ بچپن سے آج تک میر تقی میر کا ایک شعر میری زندگی کے محور پر گھومتا رہا، اور وہ ہے بار دنیا میں رہو خوش رہو یا کہ شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یا کہ بہت یاد رہو. ہمیشہ میں نے یہ بات سوچی اور اسی پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگ مجھے مارننگ شوز میں دیکھتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، خاندان والے مجھ سے ملتے ہیں، سارے میرے دوست ہیں، احباب ہیں جو آج میری محبت میں مجھے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، میری کتاب کی پذیرائی کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. لیکن یہ تمام لوگ یہ میری زندگی کا حاصل ہے، میرا سرمایہ ہے. اور میں نے جو یہ کتاب لکھی ہے اس پہ میں نے اپنی زندگی کی تمام سرگزشت بھی لکھی ہے. اور یہ کتاب ایسے مسائل پر لکھی ہے جو چھوٹے موٹے مسائل ہماری زندگی میں روزانہ جس سے ہم دو چار رہتے ہیں، وہ تمام کے تمام اس میں ہیں. اور یہ کتاب میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے، ہر ایک گھر میں ہونی چاہیے، ہر ایک لائبریری میں ہونا چاہیے. اس میں خاص طور سے میں شاہدہ کی بے حد مشکور ہوں جن کے تعاون سے میری یہ کتاب جو میرے دل میں تھی، ٹی وی پہ کے چینلز پہ تھی، یوٹیوب پر تھی، ٹوٹکوں کی صورت میں تھی، باتوں کی صورت میں تھی، لوگوں کے دلوں میں تھی، لوگوں کی زبانوں پر تھی، لیکن شاہدہ کے تعاون سے میری یہ کتاب ایک کتابی شکل میں آپ کے سامنے آئی. وسیم عباسی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس میں بہت زیادہ تعاون کیا. جو باتیں میرے لیے خیال و خواب تھیں وہ صفحہ کرتاس پر بکھیرنے کا جو سبب بنی وہ شاہدہ اور وسیم عباسی بنے. میں ان دونوں کی بے حد مشکور ہوں اور اس کتاب میں سارا تعاون ان کا ہے اور میری فیملی کا. اور خاص طور سے میرے دو بازو ہیں جو بہت مضبوط ہیں، جس میں میرا ایک بڑا بیٹا نجم الہدا اور دوسرا میرا حکیم مصطفیٰ انیس الرحمان ہے. اور یہ میرے دو بازو میرے ساتھ ہیں اور آج میں اپنے آپ کو دنیا کی سب سے مضبوط عورت سمجھتی ہوں. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے اور میرے گھرانے کو بھی ہمیشہ خوشحال اور سلامت رکھے. کہ شیلا رضا جو ہماری مہمان خصوصی ہیں، وزیر ہیں اور ترقی نسواں کی وزیر ہیں، انہوں نے یہ کتاب تفصیلاً پڑھی. مہتاب اکبر راشدی نے میری کتاب تفصیلاً پڑھی اور ان لوگوں کے پڑھنے سے میرے اندر جو انکریجمنٹ پیدا ہوئی آپ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہے. شیلا رضا نے میری ایک ایک ریمیڈی پڑھی اور اس پر اپنا پورا مکالمہ انہوں نے میری کتاب میں لکھا، جس سے میں ان کے لیے تہ دل سے مشکور ہوں. محترمہ مہتاب اکبر راشدی صاحبہ، میں آپ کی تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے میری کتاب پڑھی حرف بہ حرف اور مجھ سے اس سلسلے میں کانٹیکٹ کیا. بہت مشکور ہوں. اور میری دونوں شہباز صاحبہ جو ہماری چیمبر آف کامرس کی پریزیڈنٹ ہیں، آج مجھے انہوں نے اس مقام پر پہنچایا کہ آج 4 سال ہو گئے مجھے برابر وہاں کا نائب صدر منتخب کیا. اور اس کے ساتھ ہی میری شاہدہ ہیں جو ہمیشہ دام برم سکھ میں میرے ساتھ ہیں، اور افشاں ہیں جو ہمارے بہت بڑے بڑے ایونٹ منعقد کرواتی ہیں. اور جناب اس کے ساتھ ہی میری تمام ساتھی خواتین جو یہاں بیٹھی ہیں، عبدالحسین صاحب جو کہ سینیٹر ہیں اور انہوں نے مجھے عزت دی، میرے پروگرام میں آئے اور میرے حلقہ فکر و نظر کے بہت ہی اعلیٰ ممبر ہیں. تمام لوگوں کی بے حد مشکور
मशहूर हूँ और साबी यहाँ पर मौजूद है। ये वीनस चैनल की मॉर्निंग शो की होस्ट है और मेरी बहुत ही प्यारी कहकशा फैसल यहाँ मौजूद है, वो भी मॉर्निंग चैनल की होस्ट है। आप लोगों की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। अब अगर मैं ज्यादा बोली तो मैं अब रोने लगूंगी। बच्चा कुछ भी नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि लोग समझते हैं कि सियासतदान बहुत खुश्क लोग होते हैं। ऐसा नहीं है, हम भी तैयार होते हुए भागते दौड़ते हुए सोचते हैं कभी कभी करंट अफेयर्स के अलावा भी कुछ देखें। तो इस तरह रानी आपा का तारुफ पहले ही हो गया था। जब मेरे ऑफिस आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर घर भी आई और हमने खालिस औरतों वाली बातें की। ये सूट भी मैंने दिखाया था और सीधी बात ये है कि मुझे बड़ी फिक्र थी। 3 दफा से ज्यादा कोविड हो चुका है कि सारी मेरी छत खाली हो रही थी, तो स्किन खराब हो रही थी। तो जब मुझे ये बुक दी तो मुसव्वदा था, तो मैंने कहा मैं नहीं वापस करूंगी आपको। कहने लगी नहीं मैं तुम्हें दे दूंगी बाद में। तो मैंने कहा पक्की बात है? क्या नहीं है? मैंने कहा नहीं मैं ऐसा करती हूँ, इसकी पिक्चर उतारवा लेंगी। नहीं मैं तुम्हें दे दूंगी। फिर भी मैंने 3 की उतार ली थी पिक्चर, 3 नुस्खों की। ठीक है। ये अलग बात है कि उस पर आज तक अमल नहीं हो सका और हम भी चाह रहे होते हैं कि हम भी किसी ऐसी तकरीब में जाएं जहां हम भी कुछ बेहतर नजर आए। वो जो शाम को बैठ के एक उखाड़ पछाड़ हो रही होती है तो उससे दिल वो होता है। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ही खुशी जो हुई देखकर, एक तो मेहताब अकबर आयती साहिबा, बहुत दिनों बाद हमने एक दूसरे से मिले। दुर्र शहवार तो रहती हैं और साजदा मेरी बहुत ही दिल के करीब होती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मुझे नज़र आए जिनसे हम मिलना भी चाहते। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगी जो सबने कही, और अच्छी बात सबको कहनी चाहिए, कि जो रानी आपा ने जिस तरह से आके बात की, जिस तरह से उन्होंने किया, मैं उसको इनकार नहीं कर सकती थी। और ये तकरीब और पहले हो जाती, लेकिन मैं पाकिस्तान में नहीं थी। और फिर जब दोबारा आई तो 4 दिन मुझे फिर खदशा था कि मैं चौथी दफ़ा शिकार होके आई हूँ कोविड का। तो मैंने 5 दिन घर में ही गुजारे हैं और उसके बाद मैं निकली हूँ। और आज आपकी ये बुक लेके जब जाऊँगी तो यकीनन मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, एक ही कोशिश करूँगी कि जब टीवी पे बैठूं तो ज़्यादा कुछ करना ना पड़े, इतनी अच्छी दोबारा से हो जाऊँ काश। बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और यकीनन ये एक अच्छी किताब है और हम जो है बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ उनका नाम देकर ख़रीद लेते हैं। हम इंग्रेडिएंट भी नहीं पढ़ते और उनका ऐड देख के ले लेते हैं या बस एक नाम चल रहा है। लेकिन अगर हम बहुत सारी चीज़ें जिसमें यहाँ पर इंग्रेडिएंट दिया हुआ है उसको देख के करें तो एक बेहतर सहूलत होगी। और वो बात से मैं इत्तफाक करती हूँ कि हर चीज़ यूट्यूब देख के नहीं करनी चाहिए। ना जिया बैठी हुई है मेरी PS, हम दोनों के बाल बहुत रफ हो रहे थे। तो हम दोनों ने कहा क्या करें, तो मैंने उससे कहा कि मैंने YouTube पे पढ़ा है कि सॉफ्ट हो जाएंगे ये जो केले की बनाना की स्किन होती है, केले के जो छिलके होते हैं इनको जो है ना एक तरफ रखते रहे, फिर इनको जो है ग्राइंड करके कुछ और भी उसमें मिलाना था लगाएं। अब वो अनाड़ियों का काम फिर वही होता है ना जो हमने किया। तो हमने उसको खूब लगाया। उसके बाद मुझे नाक से आधा किलो पानी क्या होगा तकरीबन। तो फिर बाद में हमें पता चला कि हमें ऐसे करके लगाना था और यूं करके लगाना था। तो बहरहाल ये होता है, लेकिन वाकई हमारे उसके बाद बहुत फ़ायदा हुआ। फिर पूछा अपनी खाला वगैरह से बालों का क्या करें, उन्होंने कहा 5 तेल बराबर ले लो, लेकिन जो है कैस्टर ऑयल उसको हाफ लेना, जितने सारे लिए वो लगा लिए। अभी भी लगा लेती हूँ लेकिन फिर बाल ऐसे हो जाते हैं कि लगता ही नहीं धुले हुए हैं। क्या करूँ, सर पे बाल बचाने हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये टोटके जो हैं, और क्योंकि ये सर्टिफाइड टोटके हैं तो ये
भाई देखिए, बात ये है कि मेरे पास जो भी किताब आती है मैं उसे पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ पढ़ ही लूँ। और रानी आपा आई, उन्होंने अपनी चीज़ दी तो मैं बड़ी हैरान हुई कि क्या चीज़ है। मैंने पढ़ा तो उसको पढ़ती चली गई। तो फिर उन्होंने मुझसे 3 दिन बाद कहा कि तुम मुझे इस पे कुछ लिख के दो। मैं कहा मुझे लिखना भी है, अभी तो मेरी कुछ और चीज़ें रह गई हैं कि नहीं, जितना लिखा है उस पर बोल। तो जब मैंने उन्हें दिया तो हैरान हो गई कि मैंने पढ़ा भी है। तो मुझे ये इसलिए अच्छा लगा कि हम ज़ाहिर है स्किन केयर या किसी चीज़ के लिए जब कोई हम एलोपैथिक या कुछ लेते हैं तो हम सोचते हैं कि इसमें सब कुछ होगा भी है नहीं, और बहरहाल उसके ले लेते हैं। लेकिन मैं तो इसीलिए मोस्टली फार्मेसी वाली चीज़ों पे बिलीव करती हूँ। तो फिर मुझे ये अच्छा लगा, अच्छे अच्छे नुस्खे थे तो मुझे मज़ा आया। और अच्छी बात है, अपने हाथ से अपना केयर करें और अपने समझ के देखें कि क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये थिंक टीवी के लिए अपने ख़यालात का इजहार कर रही हूँ कि आज जो मैंने अपनी बुक की लॉन्चिंग सेरेमनी की है उसमें आप तमाम हज़रात तशरीफ़ लाए, और आज मुझे आप लोगों ने जो पजीराई दी मेरी किताब के लिए, आप यकीन करें कि मेरे पास आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। और आप लोगों ने आज मुझे अपनी पजीराई से फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया है। जब बहुत शुक्रिया, आप लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। असल में हल्का फ़िक्र और नज़र का पहले मैं तारुफ़ कराती चलूँ कि हमने सोचा कि इतनी टेंशन और इतनी फ़िज़ा जो है कसाफ़त का शिकार है, तो इसमें लोगों के पास मौक़े नहीं है कहीं मिल बैठने के। टेंशन इतनी लोगों को है, तो हमने सोचा कि हम कुछ ऐसे हम ख्याल लोगों को जमा करें और उनके साथ हम शाम करें ताकि हमें एक अच्छी शाम जो है लोगों के साथ बातचीत करने में, बैठने में मामून साबित हो। उसके हमने सबसे पहले मुस्लिम जिम खाना में एक प्रोग्राम किया। अफसर सईद थे, वो अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, सोशल वर्कर बहुत अच्छे थे, उनके साथ किया। उसमें कुछ लोग हमारी टीम मेंबर थे, उनसे गुफ्तगू हुई। फिर उसके बाद दूसरा प्रोग्राम हमने डॉक्टर रेहान महमूद अली शाह के साथ किया। फिर हमने हमाद अली के साथ कराची जिम खाने में किया, कबाब जी में किया। फिर हमने यूनियन क्लब में अनवर मकसूद की मिसेस मोहतरमा इमराना मकसूद के साथ शाम किया, जो हमारी बहुत बेस्ट शाम रही, क्योंकि वो बिल्कुल अनवर मकसूद की तरह ही उनके जुमले बेसाख्ता थे और उनकी भी बहुत किताबें, और वो ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती थी जो बजिया का पूरा घराना ही माशाल्लाह से आप सबके सामने है। और आज की ये तकरीब हल्का फ़िक्र और नज़र के तहत ही की गई है, क्योंकि रानी आपा से हमारी एक बहुत पुरानी याद अल्लाह तो थी, लेकिन जब हमने इनके टोटकों के बारे में सुना, टीवी पे देखा, तो रानी आपा से कहा कि भी इसको किताबी शक्ल में लाएं, क्योंकि चैनल पे देख के फिर लोग भूल जाते हैं और ये ज़रूरत है इस वक्त की कि आपके टोटके से फ़ायदा उठाया जाए। तो फिर हमारी रानी आपा से मुलाकातें इस हिसाब से रहीं, और फिर ये किताब हमने हल्का फ़िक्र नज़र के तहत पूरी किताब जो है वो पब्लिशर जिसकी मैं हूँ, उसकी प्रूफ रीडिंग से, उसके मुसवदा उन्होंने हमें दिया, और उसकी प्रूफ रीडिंग से लेके टाइटल सर और फिर सारी बाइंडिंग आपके सामने है। किताब रानी आपा के 16 सिंगार। अब आप लोग हमें पढ़ के बताएंगे कि ये किताब कैसी है, और मैं चाहूँगी कि हमारे हल्के फ़िक्र नज़र को आप लोग आइंदा भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। नेक्स्ट प्रोग्राम में अनाउंस करूँ कि हमने मेहताब अकबर अजदी के साथ एक शाम का इनेकाद किया, उसकी तारीख़ का ऐलान जल्द आपको बता दी जाएगा। देखिए, किताब कोई भी हो, किताब तो सबसे बड़ा सरमाया होती है, लेकिन रानी आपा के जो ये देसी टोटके हैं वो इस हिसाब से बहुत अहम है कि घर में कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ होती रहती है, बड़े से लेके छोटे तक कोई ना कोई बीमारी होती रहती है, लेकिन उसके लिए फिर डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं रहती। और उसमें अगर इसी में से कुछ सीख लिया जाए तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और किताब आपके हाथ में है और आप पलटते जाइए और आपको इसकी ज़रूरत है, तो ये चीज़ इस हिसाब से बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत और मुफीद है। उनको मुबारक। ये जो रानी आपा ने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है और जो उनकी एक्सपर्टी भी है वो है सेहत, और ये सेहत जो है वो घर के अंदर भी ही इसको आप इस्तेमाल करके बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, एलोपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। घर में जो आपके पास अवेलेबल होती हैं सब्ज़ी हैं, वो तमाम चीज़ें वो आप घर में कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हर घर में हमारे यहाँ आज भी जो है वो हमारी दादा और दादी के ज़माने की चीज़ें चल रही हैं, और बहुत कम लोग जो हैं कि वो उन्होंने किसी एक घर में कुछ एक आध चीज़ छोड़ दी हो, जो शानदार आज भी चल रहा है। और तो नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका तवज्जो अब ज़्यादा देनी चाहिए। दुनिया चल रही है, जर्मनी के अंदर तो 40% दवाएं हर हाल में एलोपैथिक की होती हैं, और 40% दवाएं जो होती हैं वो हर्बल की होती हैं, बाकी एलोपैथिक की होती हैं जर्मनी में।
तो फिर आपको दुनिया भी कहाँ जा रही है, तो आपको चाहिए कि हर्बल के ऊपर तवज्जो दें, और यूनानी मेडिसिन, ईस्टर्न मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन, वो सब एक ही फैमिली है। देखो, मैंने अभी शेर सुना दिया था, वैसे मैं एक वार्निंग दे देता हूँ आपको शेर में, आप ख़ास तौर से कह रहा हूँ मैं, कि मुझसे मिलो तो ज़रा फासले से मिला करो, मुझसे मिलो तो ज़रा फासले से मिला करो, मैं दिल में उतरने में कमाल रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आज इस तकरीब में मौजूद हैं। थिंक टीवी की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि आप लोग इंडोर्स करते हो ये लाइव प्रोग्राम्स जो हमारे कराची में हो रहे होते हैं। और साबिर भाई, आपसे क्योंकि ताल्लुक़ बहुत पुराना है, 30-35 साल पे मुहित है, मेरे वालिद साहब को पसंद करते थे, तो मैं सबसे पहले तो आपको सलाम पेश करूँगा। और दूसरी बात ये है कि आज किताब की यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया है, रानी आपा के 16 सिंगार। रानी आपा इज़ वन ऑफ द बेस्ट हर्बलिस्ट, और ये अपने देसी टोटकों से वो कुछ बता देती हैं जो कि क्वालिटेटिव लाइफ गुजारने का आपको भरपूर मौका पेश करता है। मैं ख़ुद ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो देसी टोटकों पर बिलीव करता हूँ, और पिछले 10-15 साल से मैं पंसारी और इन तमाम चीज़ों पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। देखिए, हम सब ने मर जाना है, लेकिन क्वालिटेटिव लाइफ गुजारना और एक विगर के साथ ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि जो है विद द टाइम हम वीक हो जाते हैं, और फिर हम होते वो ज़माना बहुत अच्छा था। अल्हम्दुलिल्लाह एट दिस एज अगर मुझे अपना विगर वही 15 साल का महसूस हो रहा है, तो मैं इस पर ख़राज तहसीन पेश करूँगा उन देसी टोटकों पर, उन एडवाइज़ पर जो रानी आपा और रानी आपा जैसी पर्सनालिटीज़ ने मुझे दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी किताब यहाँ पर जो है वो लॉन्च की गई है। आज हम मैरिट होटल में हैं, और मुझे ये ऑनर, ये शर्फ हासिल हुआ कि मैंने होस्टिंग की इस इवेंट की, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये किताब जो ये ख़जाना है, हर किसी के पास ये किताब होनी चाहिए। और मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि देसी टोटकों पर आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और अल्लाह ताला ने जो बेतहाशा कीमती चीज़ें बनाई हैं हमारे लिए, उनसे हम बेखबर हैं, और उन पर अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लायक होंगे। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम नौशीन अली है, और रानी आपा के साथ में जॉइंट होती हूँ उनके हर इवेंट पे एज आ होस्ट। और रानी आपा की जो किताब की रोनुमाई आज हुई है, इसकी ज़रूरत बहुत पहले थी, क्योंकि ये बहुत सीनियर हैं हमारी, और इनका तजर्बा जो है वो हम सबको ज़रूरत है उस चीज़ की। तो और जो इनका तजर्बा है, मैं क्योंकि मैं लाइव इनके साथ काम करती रही हूँ, मैं अपनी आंखों से देखती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इससे बहुत से लोग फ़ायदा उठाएंगे। और रानी आपा अपनी कोई टिप छुपाती नहीं है, जो एज इट इज़ होती है वैसे ही बताती है। डी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।